If it is a rule, I think all the parties should be allowed. Please, please. All the parties should be allowed to take this under FCA. Sit down, please. Sit down. No, sir, this is very wrong. Retrospective legislation is completely wrong. You are against NGOs, but you are for corporates and political parties. You are legalizing an illegal act of your party and Congress party. What is this jugalbandi between you and Congress party? We want to know. We want to know what is this. क्या है जुगलबंदी, क्या है आप और कांग्रेस पार्टी में, ये बता दीजिए हमको कि आप दोनों जब आपके पैसे की बात आती है खो जाते हैं, जब इशू की बात आती है आप लोग मुखालिफत करते हैं, तो एक कंट्री के सामने एक तमाशा कर रहे हैं आप दोनों मिलकर और हमको मालूम नहीं हो रहा. सर, सेकंड पॉइंट सर, on the minority ministry budget, I want to tell the honorable minister, सर आपके पास स्विस बैंक से आता होगा, मेरे पास नहीं आता सर. आप दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए सर, दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट का पढ़ लीजिए. आप बोलिए. दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा. सर, माइनॉरिटी बजट सर, my earnest request to the honorable minister is, please make the scholarships demand driven for Muslims, Dalits and OBCs, because there's empirical data which shows that the dropout rate of Muslims and Dalits starts at the age of 11. Please, if you look at the Kundu committee report, it clearly says that the literacy rate of Muslims is 70%. Nationally, it is 74%. For Hindus, it's 74%. Look at the attendance rate is lowest for Muslims. Children attending education in 6 and 14 is lowest. Dropout rate at the age of 5 and 14 is lowest. Education attainment at primary level, at middle level, secondary, everything is lower. So that is why it is very important for the government to make all these scholarships demand-driven for Dalits, Muslims and OBCs. Sir, third point, scheme for providing education to madrasas. You have decreased it from 336 crore to 120 crores. Why have you done it? Because your government wants madrasas to reform. You have decreased the amount because you stand for Sabka Saath, Sabka Vikas. Waqf development properties, you have only given a peanuts of 1.5 crore. There are thousands of Waqf properties. If they are developed, they will be self-sustaining, and this will ensure that the Muslim minority can become empowered. But, sir, lastly, sir, before I conclude, sir, I want to raise a point of order, sir. I want to raise a point of order, sir. That is Rule 219, sir. Please see Rule 219, sir, that talks about finance bill. In this rule, finance bill means the bill ordinarily introduced each year to give effect to the financial prospects of the Government of India for the next following financial year, and includes a bill to give effect to supplementary financial purpose of any period. Now, if you read Article 110, sir, Article 110 of the Constitution talks about, it gives on 110(1), A, B, C, D, E, F, G is there. In this finance bill, the government is amending FCRA and the RBI Act. That is not possible, sir. That, if you want to amend the RBI and FCRA, you bring another legislation. How? Because you are violating Article 110 of the Constitution. It is not there. I want the chair to give a ruling. I want the chair to give a ruling that in a money bill, can you amend RBI Act? Can you bring clauses to amend FCRA? In the middle of your speech, you are raising another. Yes, sir, I'm raising a point of order, sir. You have allowed me. I have raised a point of order. I want the chair to give a ruling. I want the, sir, because in a money bill. No, under what rule you are raising the point of order? Under Rule 219, sir. Under Rule 219 of Finance Bill and Article 110 of the Indian Constitution, please see, you are violating Article 110 of the Constitution, A, B, C, D, F, G, H. It does not, that 110(1) does not talks about amending RBI Act, amending the FCRA Act. You are violating. Let the chair give a ruling. Are you certifying? Is the chair certifying it? Sir, this is a violation, sir. How can the House allow this violation? Can you say anything? Minister will be here giving a reply tomorrow. He will answer to this issue. Sir, I want the chair to, sir. The chair has to give a ruling, sir. We made amendments the chair, sir. The minute. He's raised a point of order. The speaker should give the clarification. You are violating. Because the minister will give the reply. But whether
as per rule, what OSC Saab has raised it, according to that, whether it is correct or not, that you have to give. No, sir, we are discussing that finance bill, which includes amendment to RBI and FCRA. How is that possible, sir? You are in the middle of this, your speech, you are raising it. Yes, sir, sir, if the rules are violated, I have all the right to raise it. I have all the right to raise the violation of the rules of this house. नहीं आपने रेज कर दिया, लेकिन स्पीकर रूलिंग देंगे, थोड़ा वेट तो करिए. अरे कब देंगे आप डिबेट करवाते जा रहे हैं. थोड़ी देर में दे देंगे सर. डिबेट हो रहा है अभी थोड़ी देर में दे देंगे ओबीसी जी. जी, you're not coming. You have to wait some time. You have to wait some time. No, sir, this is a violation, sir. Sir, this is a violation of Article 110(1). Sir, in a finance bill, how can you bring an amendment to RBI or to FCRA? How can you do it, sir? Let the chair give a ruling. No, your point of order is well taken. It will be answered tomorrow. Discussion will continue, sir. Then. Sir, in the finance bill, Income Tax Act also gets changed. Amendments are also moved in relating to income tax, relating to central excise, relating to service tax. It's not that in finance bill these things are not. In any finance thing, these things are changed. And it is not for the first time. Of course, the chair will give a ruling. It is not for the first time. I would say for RBI rules also and act also gets changed. But relating to FCRA, I have my doubts. Sir, let the chair give a ruling. We have no issues. The chair has not given a ruling. Mr. Mehtab is right, but the chair had certified. Now here we have a classic case wherein the chair has not certified. Let the chair give a ruling, sir. I've raised a point of order which has to be answered. Because in a finance bill, what has happened in President has happened with the permission and consent of the Speaker. OBC ji, chair will definitely give the ruling. You hear the chair. He has already stated here that tomorrow the Honorable Minister of Finance will reply to the debate. And I have raised a point of order towards the chair. It is the chair who has to give a ruling, sir, not the finance minister. You continue your speech. As Honourable Member Shri Mehtab ji has said, it is customary practice to change some of these laws, like the RBI Act was amended last year itself. We amended the RBI Act. This particular question of the FCRA, we will let the minister give his full reply tomorrow on this issue as well. And thereafter, then the chair can issue their ruling. No, we don't have to have a ruling at this point. Sir, this is a matter that sir, the ruling has to be given by Speaker, by the chair. Question is that you have to give the ruling. He will give reply for entire debate, not for the ruling. What the point of order, what OSC Sab has raised, on that you have to give the ruling. Otherwise, if you go on discussing the issue, then there is no meaning of raising the point of order. The point of order. I have already, Kharge, I have already stated here. After hearing the reply from the Minister of State, sir, FCRA with the Home Minister, how can we bring a finance bill? The Honorable Minister of Finance will give you the reply. Sir, amendment to FCRA, Home Minister has to bring a bill. The chair has an ordinary bill has to be brought. The chair has to give the ruling because he has raised the point of order. It is a point of order. Then you stop the discussion, sir. We'll take it tomorrow after ruling. One thing you can do tomorrow. You can, with order, you can clarify. Home Minister. Tomorrow. Kharge has been stated here. Sir, FCRA is Home Minister, sir. It is usual that during the finance bill, discussion of the finance matter, many things come up. And similarly, the Honorable Minister, Honorable OLCG brought the one question here. And point of order, what I get the reply that tomorrow it will be replied. Whether let the chair certify it. Let the chair certify it. It has been satisfied by the Speaker, Honorable Speaker, already satisfied. Sir, how can a finance bill amend? My contention is, how can the finance bill amend an RBI Act or the clause or the FCRA? How can that happen, sir? How can that happen, sir? What is this practice? This is a wrong practice. Constitutionally, if it is done, it has to go to the upper house. Chairman, sir. Chairman, sir. The reply
the chair can give ruling only after hearing the minister of the issue raised by Sri Olashi. The ruling is being reserved. सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस बहस का जवाब हमारे वजीर पार्लिमानी जवाब देंगे। मैं उनके जरिए से पूछना चाह रहा हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि जब उनसे पूछा गया आपका मजहब क्या है तो वजीर आजम ने कहा इंडिया फर्स्ट। जब वजीर आजम से पूछा गया कि आपकी किताब कौन सी है तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आईन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन दो चीजों को सामने रखकर मैं हमारे हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस से सवाल करना चाहूंगा कि क्या यह बात गलत है कि जो लोग आज मजहब की तब्दीली की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान को और हिंदुस्तान के ईसाई को पहले दर्जे का शहरी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर लेते? क्या यह बात गलत है या सही है? अगर जो लोग घर वापसी की आज बात कर रहे हैं, मैं बड़ी ही इज्जत के साथ हुकूमत के सामने बात रखना चाह रहा हूं कि आपके कैबिनेट में 2 मुस्लिम वजीर हैं। अगर कोई उनके पास जाके कहे कि भाई आप मुसलमान हैं, दोनों छोड़ दो और घर वापसी आ जाओ, आप कैसा महसूस करेंगे? तीसरी बात मैं हुकूमत से पूछना चाहूंगा कि हमारे वजीर ये कह रहे हैं, यहां पर जो बहस हुई, हिंदुस्तान के दस्तूर में आर्टिकल 341 क्या है? क्या वो मजहब के ऊपर नहीं है? आप उसकी तरमीम क्यों नहीं करते? हमारे वजीर पार्लिमानी जवाब देते हैं कि एक कानून बनाया जाए। मैं वेंकैया नायडू साहब से कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी, आप काबिल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं, खास तौर से टीटी कृष्णमाचारी और के मुंशी ने क्या कहा था आर्टिकल 25 पर जब बहस हो रही थी, आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोई अपना मजहब तब्दील ना करे। अगर ये बात, और एक बात सर जो अहम बात है वो ये है कि तमाम तंजीमें जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इनका ताल्लुक क्या बीजेपी से नहीं है? क्या इनका ताल्लुक अम्बिलिकल कॉर्ड है इनका बीजेपी से? वो रद्द कर दें कि इनका ताल्लुक नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन ले। प्राइम मिनिस्टर एक बात कहते हैं, वजीर खारजा एक बात कहते हैं, आप हिंदुस्तान में एफडीआई लाना चाहते हैं। क्या इस तरह के बातों से एफडीआई आएगा? क्या इस तरह के दहशतगर्दी के बातों से, फसाद कराने से क्या हिंदुस्तान में ग्रोथ होगी? क्या हिंदुस्तान मजबूत होगा? यह हुकूमत पर मुनहसर है, हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत यह कहती है कि कानून लेकर आएंगे। मैं वेंकैया जी से पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956 सेक्शन 6 क्या तरमीम करेंगे? हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 7, 8, 9, 11 तरमीम करेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 क्या उसको बर्खास्त करेंगे? हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 26 क्या उसको निकालेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में सर, मुझे अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कायद हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ही हो रहा है। अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। 2 दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया। 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में इतना गड़बड़ हो रही है। अरे आप नूरा कुश्ती करना छोड़ दीजिए। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप, अगर आपका मजहब हिंदुस्तान फर्स्ट है, अगर आपकी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, बंद करिए आपके लोगों को। ये बजरंग दल, आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने चाहने वालों को रोको, यह मुल्क बचेगा। शुक्रिया। आप करें, आप हुकूमत नहीं कर रही, आप हुकूमत नहीं कर रही, आप हुकूमत नहीं कर रही। Please order, please. Please order, please. Please, you have a seat. Please take your seat. Anyone want to cut? Please, please. प्रेमचंद्र, thank you. से भी मैंने इसका उल्लेख किया। मैंने कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। सोचा व्यस्त होंगे, लेकिन आज तक उनके कॉल का इंतजार कर रही हूं, नहीं आया। So, sir, allow me to finish. Allow me to finish. Now let me, madam. मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसे ओवैसी साहब और मैं गुहार लगा रही हूं मदद की।
कैबिनेट मिनिस्टर, मैं गुहार लगा रही हूँ मदद की कैबिनेट मिनिस्टर। आज मैं कहती हूँ और आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि पुलिस ने जो तेलंगाना के हाई कोर्ट में दस्तावेज दिए हैं उसमें क्या लिखा गया है। उसमें ये लिखा गया है कि पुलिस को सूचना शाम को 7:20 को मिलती है। उसमें ये लिखा गया है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है मौकाए वारदात पर, and I am quoting, madam, my friends in Telangana can possibly have access to that document and verify it, and if I am wrong can correct me. पुलिस ये कहती है that when they rushed to the university, they found the room open, dead body removed from the hanging and kept on a table. A handwritten suicide note was written which did not blame anybody and specifically stated that nobody is responsible for this act. My request is, madam, this is not my submission, but that of the police in a state which is not politically. She is not yielding. I know, sir. That's why I'm saying. If I'm wrong, correct me. No, nothing. मैडम, Yes. टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की। Nothing will go on record. आप बैठिए, कुछ नहीं था, आप बोलिए। मैडम, टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की, गांधी ने अवामी कौम परस्ती की बात की। दोनों ने हुब्बुल वतनी को कौम परस्ती पर तरजीह दिया। बीजेपी की तरफ से कौम परस्ती की बात हो रही थी। मैं ये जानना चाहता हूं इनकी तरफ से, क्योंकि ये लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, एक कौम परस्ती का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, नागा लिम, नागा एकॉर्ड क्या है? वो नागा लिम कहते हैं और हिंदुस्तान को नहीं मानते। आप हिंदुस्तान में उनसे बात नहीं किए, सिंगापुर में किए। आप बताइए कौम परस्त कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 1984 में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया। आप उनकी तायीद कर रहे हैं। कौम परस्त कौन है? तीसरी बात, आप अफजल की बात करते हैं। आप अफजल की बात करते हैं। जो नारे जेएनयू में लगाए गए, मैं उसको नहीं मानता, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मगर श्रीनगर में रोज जुमे के दिन नारे लगाए जाते हैं। क्या पूरे श्रीनगर को बंद कर देंगे? पीडीपी की आप तायीद क्यों कर रहे हैं? कहां गए आपकी हुब्बुल वतनी? कहां गए आपकी कौम परस्ती? कहां गए आपके भारत माता के नारे? कहां गए आपकी हिंदुस्तान से मोहब्बत? जब पीडीपी ने अफजल गुरु को शहीद करार दिया, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कहा, आप उसकी बात नहीं करते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैडम, अफजल मसला नहीं है। अफजल कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या इस पर आप तवज्जो देंगे? और यहां पर कांग्रेस के लोग जब कह रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं नहीं मानता इनकी इस बात को भी। इन्हीं के दौर में अफजल को फांसी दी गई थी, कानून का फैसला था, मगर क्यों नहीं अफजल की बेवा को उससे मिलने दिया गया? क्यों नहीं अफजल की लाश को उसके बेवा के हवाले किया गया? कांग्रेस पार्टी भी उतना मुलविस है। सेडेशन की जब बात आती है, महाराष्ट्र में आपने सेडेशन लगाया, आज आप लगा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं बीजेपी से, क्या कन्हैया पर आप इल्जाम साबित कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या आप सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे? कन्हैया पर कोई इल्जाम नहीं है, वो झूठा इल्जाम है, नारे नहीं लगाए गए, पुलिस की रिपोर्ट है। मैडम, रोहित की बात, मैडम मैं खत्म कर, रोहित की बात, रोहित का कत्ल नहीं होता अगर दत्तात्रेय खत नहीं लिखते। रोहित की मौत नहीं होती अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती। रोहित का कत्ल एक इदाराती कत्ल है, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिर में मैडम, मैं ये बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं, आपसे मैं बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की हुकूमत रही तो ये कहते हैं कि हमारी लिबरल आइडियोलॉजी, बीजेपी की हुकूमत रही तो सावरकर की, गोलवालकर की, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। अरे आइडियोलॉजी की बात कब तक करोगे तुम दोनों? हिंदुस्तान का दस्तूर कहां गया? खाक में चला गया क्या हिंदुस्तान के दस्तूर को? और आप अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं, हम हमारे गलों पर थोप रहे हैं। अगर मैं आपकी, सावरकर की, दीनदयाल उपाध्याय की इस आइडियोलॉजी की मुखालिफत कर रहा हूं, अगर मैं बागी हूं तो मुझे अपनी बगावत पर फख्र रहेगा। मैं आपसे बगावत करता रहूंगा, मुल्क से नहीं करता रहूंगा। मैं इसीलिए आपके जरिए हुकूमत से कह रहा हूं मैडम कि दलितों को इंसाफ आपसे नहीं मिल सकता,
क्योंकि आप एंटी दलित हैं। आप अगर कोई नारा लगाता है मैडम कि मैं मनुवादी के खिलाफ हूं, मैं फिरका परस्ती के खिलाफ हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसीलिए मैं हुकूमत से इट्स ओके, हो गया। राजेश रंजन जी, यू वांट टू स्पीक, बोलिए। गलत हो रहा है, जेएनयू में जोड़ा गलत हो रहा है, और इस तरह से करने से आप जेएनयू में नहीं दाखिल हो सकते। बैठिए, हो गया। अध्यक्ष जी, राजेश रंजन जी, मैं बात खत्म कर, कहाँ कर रहे हो? बात तो मुकम्मल, प्लीज, यस, बात खत्म कर देता। हाँ मैडम, मैं अपनी बात इस बात पर खत्म कर रहा हूं कि आइडियोलॉजीज को मत थोपिए। आप हिंदुस्तान के दस्तूर पर कायम रहिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उन तमाम चैनलों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो झूठ बता रहे थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ मारे गए। शुक्रिया। यस। आई एम कोटिंग मैडम स्पीकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवाजी के खिलाफ लिखा। कांग्रेस पॉलिटिशियंस allowed the killings for 3 days in the Sikh riots. That is also taught. Hindu-Christian riots in Kanyakumari. How the propaganda of Hindu organizations targets Christian minorities. You are teaching this to a child in the 4th standard. This is their idea of secular education. History taught to standard 6, and I quote, Madam Speaker, Kashmir is a much demonized land today. That the state militates against the atrocities of the Indian state. You teach a 6th standard child this. Are we shocked that when these children go to a university, they said Kashmir ki azadi tak jang ladenge? My तकलीफ सुन लीजिए, ओवैसी साहब सुन लीजिए। Scenario 4 on page 5. Orders issued to Delhi schools after the death of Prime Minister Indira Gandhi. Check what a trainee teacher teaching English sailed through her period. One of the words given to the children to draft a sentence was the word arrive. Asadanyulas. Sir, the finance bill, about the finance bill, sir, I want to know from the Honourable Minister that by amending the FCRA, why is the amendment to FCRA being brought? And this is a very clever device by this government to ensure to overcome the Delhi High Court judgment which came against BJP and Congress that they have taken donations from foreign companies. BJP and Congress have appealed to Supreme Court. The Supreme Court has not given any stay or interim order. The Delhi High Court said the Home Ministry and the Election Commission to inquire and take action. This is nothing but, sir, a case of backdoor legislation. It is a classic case of preempting the judiciary through a retrospective change of law. And this is also a classic case of conflict of interest and natural justice. You being in power, you are now bringing a legislation which will have a retrospective effect from 26 September 2010. You are legitimizing the violation of FCRA. This is against natural justice. How will the ruling party take action against BJP? How will the ruling sir, I want to know what is the stand of Congress party also. Because when it suits both the parties, it is a matter of convenience. When it doesn't suit, it becomes Augusta. Now, this August House wants to know, what are you doing? How can you... Sir, the importance of this legislation is, tomorrow lakhs of companies in China, US, UK, UAE would give money to political parties. And unfortunately, it will be the bigger parties. What about smaller parties? We will be penalized. So I want to know, what is the opinion of Congress party? Are you supporting this? If it is a rule,
All the parties should be allowed. Please, please. All the parties should be allowed to take this under extension. Sit down, please. Sit down. No, sir, sir, this is very wrong. Retrospective legislation is completely wrong. You are against NGOs, but you are for corporates and political parties. You are legalizing an illegal act of your party and Congress party. What is this jugalbandi between you and Congress party? We want to know. We want to know what is this. क्या है जुगलबंदी, क्या है आप और कांग्रेस पार्टी में, ये बता दीजिए हमको कि आप दोनों जब आपके पैसे की बात आती है खो जाते हैं, जब इशू की बात आती है आप लोग मुखालिफत करते हैं, तो एक कंट्री के सामने एक तमाशा कर रहे हैं आप दोनों मिलकर और हमको मालूम नहीं हो रहा. सर, सेकंड पॉइंट सर, on the minority ministry budget, I want to tell the honorable minister, सर आपके पास स्विस बैंक से आता होगा, मेरे पास नहीं आता सर. आप दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए सर, दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट का पढ़ लीजिए. आप बोलिए. दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा. सर, माइनॉरिटी बजट सर, my earnest request to the honorable minister is, please make the scholarships demand driven for Muslims, Dalits and OBCs, because there's empirical data which shows that the dropout rate of Muslims and Dalits starts at the age of 11. Please, if you look at the Kundu committee report, it clearly says that the literacy rate of Muslims is 70%. Nationally, it is 74%. For Hindus, it is 74%. Look at the attendance rate is lowest for Muslims. Children attending education in 6 and 14 is lowest. Dropout rate at the age of 5 and 14 is lowest. Education attainment at primary level, at middle level, secondary, everything is lower. So that is why it is very important for the government to make all these scholarships demand-driven for Dalits, Muslims and OBCs. Sir, third point, scheme for providing education to madrasas. You have decreased it from 336 crore to 120 crores. Why have you done it? Because your government wants madrasas to reform. You have decreased the amount because you stand for Sabka Saath, Sabka Vikas. Waqf development properties, you have only given a peanuts of 1.5 crore. There are thousands of Waqf properties. If they are developed, they will be self-sustaining, and this will ensure that the Muslim minority can become empowered. But, sir, lastly, sir, before I conclude, sir, I want to raise a point of order, sir. I want to raise a point of order, sir. That is Rule 219, sir. Please see Rule 219, sir, that talks about finance bill. In this rule, finance bill means the bill ordinarily introduced each year to give effect to the financial prospects of the Government of India for the next following financial year, and includes a bill to give effect to supplementary financial purpose of any period. Now, if you read Article 110, sir, Article 110 of the Constitution talks about, it gives on 110(1), A, B, C, D, E, F, G is there. In this finance bill, the government is amending FCRA and the RBI Act. That is not possible, sir. That, if you want to amend the RBI and FCRA, you bring another legislation. How? Because you are violating Article 110 of the Constitution. It is not there. I want the chair to give a ruling. I want the chair to give a ruling that in a money bill, can you amend RBI Act? Can you bring clauses to amend FCRA? In the middle of your speech, you are raising another. Yes, sir, I am raising a point of order, sir. You have allowed me. I have raised a point of order. I want the chair to give a ruling. I want the, sir, because in a money bill. No, under what rule you are raising the point of order? Under Rule 219, sir. Under Rule 219 of Finance Bill and Article 110 of the Indian Constitution, please see, you are violating Article 110 of the Constitution, A, B, C, D, F, G, H. It does not, that 110(1) does not talks about amending RBI Act, amending the FCRA Act. You are violating. Let the chair give a ruling. Are you certifying? Is the chair certifying it? Sir, this is a violation, sir. How can the House allow this violation? Can you say anything? Minister will be here giving a reply tomorrow. He will answer to this issue. Sir, I want the chair to. Sir, the chair has to give a ruling, sir. We made amendments to the the chair, right. Sir, the minute. He's raised a point of order. The speaker should give the clarification. You are violating. Because the minister will give the reply. But whether, as per rule,
what OSC Saab has raised it, according to that, whether it is correct or not, that you have to give. No. Sir, we are discussing that finance bill, which includes amendment to RBI and FCRA. How is that possible, sir? You are in the middle of this your speech. You are raising it. Yes, sir. I have. Sir, if the rules are violated, I have all the right to raise it. I have all the right to raise the violation of the rules of this house. नहीं आपने रेज कर दिया, लेकिन स्पीकर रूलिंग देंगे, थोड़ा वेट तो करिए. अरे कब देंगे आप डिबेट करवाते जा रहे हैं. थोड़ी देर में दे देंगे सर. डिबेट हो रहा है अभी थोड़ी देर में दे देंगे. ओबीसी जी, you're not coming. You have to wait some time. You have to wait some time. No, sir, this is a violation, sir. Sir, this is a violation of Article 110(1). Sir, in a finance bill, how can you bring an amendment to RBI or to FCRA? How can you do it, sir? Let the chair give a ruling. No, your point of order is well taken. It will be answered tomorrow. The discussion will continue, sir. Then. Sir, in the finance bill, Income Tax Act also gets changed. Amendments are also moved in relating to income tax, relating to central excise, relating to service tax. It's not that in finance bill these things are not changed. In any finance thing, these things are changed. And it is not for the first time. Of course, the chair will give a ruling. It is not for the first time. I would say for RBI rules also and act also gets changed. But relating to FCRA, I have my doubts. Sir, let the chair give a ruling. We have no issues. The chair has not given a ruling. Mr. Mehtab is right, but the chair had certified. Now here we have a classic case wherein the chair has not certified. Let the chair give a ruling, sir. I've raised a point of order which has to be answered. Because in a finance bill, what has happened in President has happened with the permission and consent of the Speaker. OBC, chair will definitely give the ruling. You hear the chair. He has already stated here that tomorrow the Honorable Minister of Finance will reply to the debate. And I have raised a point of order towards the chair. It is the chair who has to give a ruling, sir, not the finance minister. You will continue your speech. As Honourable Member Shri Mehtab ji has said, it is customary practice to change some of these laws, like the RBI Act was amended last year itself. We amended the RBI Act. This particular question of the FCRA, we will let the minister give his full reply tomorrow on this issue as well. And thereafter, then the chair can issue their ruling. No, we don't have to have a ruling at this point. Sir, this is a matter that sir, the ruling has to be given by Speaker, by the chair. Question is that you have to give the ruling. He will give reply for entire debate, not for the ruling. What the point of order, what OSC Saab has raised, on that you have to give the ruling. Otherwise, if you go on discussing the issue, then there is no meaning of raising the point of order. The point of order. I have already, Kharge, I have already stated here. After hearing the reply from the Minister of State, sir, FCRA with the Home Minister, how can we bring a finance bill? The Honorable Minister of Finance will give you the reply. Sir, amendment to FCRA, Home Minister has to bring a bill. The chair has an ordinary bill has to be brought. The chair has to give the ruling because he has raised the point of order. It is a point of order. Then you stop the discussion, sir. We'll take it tomorrow after ruling. One thing you can do tomorrow. With order, you can clarify. Home Minister. Tomorrow. Kharge has been stated here. Sir, FCRA is Home Minister, sir. It is usual that during the finance bill discussion of the finance matter, many things come up, and similarly the Honorable Minister, Honorable Walisi brought the one question here, and point of order, what I get the reply that tomorrow it will be replied. Whether let the chair certify it. Let the chair certify it. It has been satisfied by the Speaker, Honorable Speaker, already satisfied. Sir, how can the finance bill amend? My contention is, how can the finance bill amend an RBI Act or the clause or the FCRA? How can that happen, sir? How can that happen, sir? What is this practice? This is a wrong practice. Constitutionally, if it is done, it has to go to upper house. Chairman, sir. Chairman, sir. The reply
the chair can give ruling only after hearing the minister of the issue raised by Sri Olashi. The ruling is being reserved. एक आंख के बदले दो आंख, एक दांत के बदले पूरा जबड़ा, और मुल्क को, हिंदुस्तान को बाल्टिस्तान में और बलूचिस्तान में मदाखलत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी को फरोग देता है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप में खुद तजाद है। आपका एक रुकन पार्लियामान यह कहता है कि बलूचिस्तान में गड़बड़ करनी चाहिए, और यहां पर आप ये कहते हैं कि क्या है, यानी ये क्या तजाद है आप में? आप खुद पहले अपने घर को सुधार लीजिए, सही कर लीजिए, उसके बाद हम पर तनकीद करिए। दूसरी बात, वजीर आजम हिंदुस्तान के ऊपर, अरे बैठिए ना, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, आप उनको सुनिए, आप सुन तो लीजिए, बैठिए, बात तो सुनिए। अरे इतना परेशान आदमी से आप लोग, इतना परेशान है, आप बैठ जाइए, अभी तो क्लाइमेक्स है, बैठ जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है, सुनिए अभी क्या है। दूसरी बात, मोहतरम स्पीकर साहब, दूसरी बात, वजीर आजम बड़े लग गए, आपको तकलीफ हो गई, मैडम क्या बोलेंगे, दिखाइए। मैडम स्पीकर, शांत हो जाइए, क्या हो मोहतरम स्पीकर साहिबा, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि वजीर आजम ने जो बात कही, स्टेटमेंट पर आप लोगों को अगर मुखालिफत है, पाकिस्तान के ताल्लुक से जो स्टेटमेंट किया गया, सवाल ये पैदा होता है कि मेरे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा, मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ नहीं की, आपके लीडर ने तारीफ की मोहम्मद अली जिन्ना की। उसने क्या कहा, हमने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया, ये बात हरगिज़ नहीं कही है बात। तीसरी अहम बात, मोहतरमा स्पीकर साहिबा, मोहतरमा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपके डराने से डरने वाला नहीं हूं मैं, आप वहां पर बोलिए, मुझे मत बोलिए, वहां पर बोलिए आप। क्या क्या करोगे, क्या करोगे? नहीं बैठूंगा मैं, नहीं बैठूंगा मैं। क्या तुम डरने वाला हो समझे तुम? हाँ? चलो बहुत देखे तुम्हारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर दीजिए। डरने वाला हूं मैं, तुम क्या करोगे? बैठ जाइए। हाँ, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। Madam, I want a point of order, and my point of order is under Rule 354. Rule 354 says, no speech made in the Council, means Council of States Rajya Sabha, shall be quoted in the House, that is this Lok Sabha, unless it is a demonstration of policy by a minister. Under Rule 354, बाकायदा ये पाबंदी है कि राज्यसभा में कही गई कोई बात लोकसभा में वोट नहीं की जा सकती, और मेंबर ने ये शुरू करते ही कहा दूसरे ऐलान में ये बात कही गई। ठीक है, can I now speak? Can I now speak? No, I'm just saying on this point. ठीक है, on this, please sit down, please take your seat. I've heard you. I've heard you on this point of order. Under this rule, whatever reference has been made to the other house will not go in record. All right, you please start. Please sit down. मैडम शुरू करने नहीं दिए, एक ही बात पे इतनी गड़बड़ कर दिए, सराफा हो गए। बीजेपी की तरफ से लफ्ज इस्लामिक का इस्तेमाल क्यों किया गया पाकिस्तान ताल्लुक से, इस बात का जिक्र बीजेपी के मौजूदकुन ने किया। पाकिस्तान को इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। हिंदुस्तान में 15 करोड़ गय्यूर हिंदुस्तानी मुसलमान रहते हैं, इसमें कौन सी आपत्ति है? हाँ, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच और फिक्र इस्लाम के खिलाफ है, मानता हूं इस बात को, मगर आप इस्लाम के ऊपर इस तरह की बात नहीं कर सकते।
तीसरी अहम बात मोहतरमा स्पीकर साहिबा, तीसरी अहम बात, प्लीज नाउ लिसन टू हिम, प्लीज लिसन टू, अब आप बैठिए, लेट हिम स्पीक। तीसरी अहम बात मोहतरमा स्पीकर साहिबा, वजीर आजम के काम से Please conclude. इस्लामिक कंट्रीज में, Please conclude. Now there is no time left. There is no time left. Honorable member, I'll have to tell you to conclude. मैडम बोलने दीजिए। Yes, please sit down. There is very little time left. हमको बोलने There is दीजिए। very little time left. Yes, honorable member, honorable minister, मैडम हमको खत्म करने दीजिए। honorable minister, yes, please. बैठ जाइए, मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। Only what honorable minister says will go in record. बैठिए, मंत्री महोदय जी को उत्तर देने दीजिए। Please allow honorable minister to speak. Please sit down. Yes. Madam Speaker. सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं जो एडजर्नल मोशन मूव किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, उसकी तायीद में खड़ा हूं। जहां पर मैं तायीद कर रहा हूं वहीं मुझे बड़ा ताज्जुब भी है। मैं बहैसियत एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते मुझे समझ में नहीं आया कि इतने दिन ऐवान को रोकने के बाद कांग्रेस पार्टी एक दिन पहले अचानक इस डिस्कशन के लिए तैयार हो जाती है। नहीं मालूम वेंकैया नायडू साहब ने कौन सी नेल्लूर की मिर्ची खिलाई या कौन सी गुगली डाली और मौका दे दिया पूरी सफाई के साथ वजीर खारजा को अपनी बात रखने का। खैर, वो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है। सर, जहां पर अभी हमने जवाब सुना वजीर खारजा का मोहतरमा का, और मैं ये समझता हूं कि 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो मोहतरमा सुषमा स्वराज थी, जो यहां पर बैठकर पॉइंटेड तकारीर करती थी। ये और बात है कि उनकी पार्टी ने उसका कभी 1% भी क्रेडिट नहीं दिया, कोई और दूल्हा बन गया। फिर एक बात है। तीसरी बात यह है कि असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा जो है वो आईपीएल है सर, इंडियन पॉलिटिकल लीग। सर, ये इंडियन पॉलिटिकल लीग जब तक रहेगी तमाम चीजों का सत्यानाश होगा। सर, मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 120 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें से एक शख्स 20 करोड़ रुपए लेकर पाकिस्तान को भाग गया। 20 करोड़ रुपए लेकर पाकिस्तान को भाग गया। आप एक साल से सरकार में क्या कर रहे हैं? ये मेरे अल्फाज नहीं है सर, हमारे दरभंगा के एमपी के मैंने अल्फाज सुने कि एक $400 मिलियन का घोटाला हुआ। ये कोई 40 चोर नहीं थे, बल्कि 8 चोरों ने ललित मोदी के साथ $400 मिलियन खा लिए। ये गारत का घड़ा है, भरता नहीं है क्या पेट इनका? हमारे हिंदुस्तान के 400 करोड़ रुपए खा गए। आरबीआई का वायलेशन, एफडीआई का वायलेशन, आईटी का वायलेशन, ये ड्रग मनी भी हो सकता है। इसको 1365 करोड़ लाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इसका तो जवाब दे देते। और अफसोस इस बात का है कि मोहतरमा सुषमा स्वराज को इस ऐवान में इतनी गड़बड़ में खड़े होकर अपनी सफाई बयान करना पड़ा। पार्लिमानी जमहूरियत में तो यह होना चाहिए था कि उनके वजीर आजम जो उनका कॉन्फिडेंस एंजॉय करते, वो ऐवान में आकर कहते हैं कि मुझे अपने वजीर पर पूरा भरोसा है, मुझे उनकी सच्चाई पर भरोसा है। मगर अफसोस ये सर, मैं खत्म कर रहा हूं, अफसोस यह है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? मोहतरमा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो तमाम मालूमात मिली है हमको, वो आपके पास से मिली, हमारे पास से नहीं मिली। घर का भेदी लंका ढाए, जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। सर, आई एम कंक्लूडिंग सर। मैं यहां पर बैठकर मोहतरमा सुषमा स्वराज ने एक शेर कहा था कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के मुसलमान जिन पर 324 आईपीसी का केस होता है, उनको पासपोर्ट नहीं बनता है सर। उनका पासपोर्ट कैसा बनेगा?
उनकी इंसानियत के लिए कौन, ये फ्यूडलिज्म है कि जो वजीर खारजा को जानता पासपोर्ट मिलता हमारे दलित और मुसलमान क्या करेगा। इसीलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि सर मैं खत्म कर रहा हूं कि आप इसको देखिए, इन चीजों को रोकिए और ये जो 1365 करोड़ रुपए लेकर आइए, वजीर आजम को आना चाहिए, आकर कहना चाहिए कि मुझे पूरा अटूट भरोसा है, वरना ये लगता है कि एक साजिश का हिस्सा हो रहा है तमाम चीजें। शुक्रिया सर। तमाम चीजों का सत्यानाश होगा। मुझे सर, मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 120 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें से एक शख्स 20 करोड़ रुपए लेकर पाकिस्तान को भाग गया। 20 करोड़ रुपए लेकर पाकिस्तान को भाग गया। आप एक साल से सरकार में क्या कर रहे हैं? ये मेरे अल्फाज नहीं है सर, हमारे दरभंगा के एमपी के मैंने अल्फाज सुने कि एक $400 मिलियन का घोटाला हुआ। ये कोई 40 चोर नहीं थे, बल्कि 8 चोरों ने ललित मोदी के साथ $400 मिलियन खा लिए। ये गारत का घड़ा है, भरता नहीं है क्या पेट इनका? हमारे हिंदुस्तान के 400 करोड़ रुपए खा गए। आरबीआई का वायलेशन, एफडीआई का वायलेशन, आईटी का वायलेशन, ये ड्रग मनी भी हो सकता है। इसको 1365 करोड़ लाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इसका तो जवाब दे देते। और अफसोस इस बात का है कि मोहतरमा सुषमा स्वराज को इस ऐवान में इतनी गड़बड़ में खड़े होकर अपनी सफाई बयान करना पड़ा। पार्लिमानी जमहूरियत में तो यह होना चाहिए था कि उनके वजीर आजम जो उनका कॉन्फिडेंस एंजॉय करते, वो ऐवान में आकर कहते हैं कि मुझे अपने वजीर पर पूरा भरोसा है। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं जो एडजर्नल मोशन मूव किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, उसकी तायीद में खड़ा हूं। जहां पर मैं तायीद कर रहा हूं वहीं मुझे बड़ा ताज्जुब भी है। मैं बहैसियत एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते मुझे समझ में नहीं आया कि इतने दिन ऐवान को रोकने के बाद कांग्रेस पार्टी एक दिन पहले अचानक इस डिस्कशन के लिए तैयार हो जाती है। नहीं मालूम वेंकैया नायडू साहब ने कौन सी नेल्लूर की मिर्ची खिलाई या कौन सी गुगली डाली और मौका दे दिया पूरी सफाई के साथ वजीर खारजा को अपनी बात रखने का। खैर, वो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है। सर, जहां पर अभी हमने जवाब सुना वजीर खारजा का, मोहतरमा का, और मैं ये समझता हूं कि 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो मोहतरमा सुषमा स्वराज थी, जो यहां पर बैठकर पॉइंटेड तकारीर करती थी। ये और बात है कि उनकी पार्टी ने उसका कभी 1% भी क्रेडिट नहीं दिया, कोई और दूल्हा बन गया। फिर एक बात है। तीसरी बात यह है कि असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा जो है वो आईपीएल है सर, इंडियन पॉलिटिकल लीग। सर, ये इंडियन पॉलिटिकल लीग जब तक रहेगी, मुझे उनकी सच्चाई पर भरोसा है, मगर अफसोस ये सर, मैं खत्म कर रहा हूं, अफसोस ये है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? मोहतरमा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो तमाम मालूमात मिली है हमको, वो आपके पास से मिली, हमारे पास से नहीं मिली। घर का भेदी लंका ढाए, जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। सर, आई एम कंक्लूडिंग सर। सर, मैं यहां पर बैठकर मोहतरमा सुषमा स्वराज ने एक शेर कहा था कि मुझे रहजनों से। स्पीकर साहिबा, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं। मैं हम दोनों की तरफ से और महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि इन्होंने जो स्टार्टअप और स्टैंडअप, खासतौर पे स्टैंडअप इंडिया की जो स्कीम इन्होंने बनाई है, इसमें SC ST जो सबसे बैकवर्ड हैं और मुस्लिम औरतें जो जोड़ी हैं, उसमें मुस्लिम भी औरतें शामिल हैं। तो वैसे ही ये स्कीम औरतों के लिहाज से उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मुझे लगता है लोगों की निगाह से निकल गई है कि 50% population of this country is covered under that scheme, in which every woman comes into it regardless of caste, creed and religion. यहाँ कोई हमारे सरकार में विवाद नहीं होता। जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, पिछड़ों में SC ST और महिलाएं खासतौर पर सब में पिछड़ी है, चाहे वो मुसलमान महिलाएं हो चाहे अपर कास्ट महिलाएं, महिलाएं सब पिछड़ी हुई हैं। और उन महिलाओं को इसमें स्कीम में शामिल करके मैं समझती हूं कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। आप बांका की बात कर रहे हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां भी गरीबी है, चाहे वो बुनकर हो
या दूसरे भी कोई काम कर रहे हों उससे कवर होते हैं। और महिलाओं के जरिए आपको मैं कहूंगी वैसी साहब कि आप अपनी वाइफ के नाम पे लोन ले लीजिएगा 1 करोड़ का। क्वेश्चन आवर इज ओवर। नहीं, कोई गलत बात नहीं कही, आप चिंता मत करें। यू कैन प्लीज नहीं, इट्स ओके, नहीं प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, प्लीज। क्वेश्चन आवर इज ओवर, प्लीज डोंट आंसर, टेक इट लाइटली। ओवैसी जी, नो कमेंट, प्लीज। यस, ऑनरेबल मेंबर्स, आप बैठिए ना, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? प्लीज बैठिए। ओवैसी जी, शी हैज नॉट गिवन एनी रिमार्क, प्लीज टेक इट लाइटली, प्लीज बैठिए। Honorable members, I have received notice. What is it? क्या है? Nothing will go on record. Take back your words, not with me. That's all. मैं आपको आंसर नहीं। It's okay. वैसे साहब नाराज मत होइए, मैंने आपकी वाइफ को बुरा नहीं कहा। एक मिनट, प्लीज पर्सनल एक प्लीज, ठीक है, आप बात सुनिए। प्लीज, मैं आपकी वाइफ की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। 1 मिनट, मैंने नहीं करी, बात सुनिए। it's okay. Let him understand. Yes, Madam Minister. ओवैसी साहब, प्लीज। ओवैसी साहब, मैंने ये कहा कि औरतों को इसमें कवर्ड है। अगर आपकी अहलिया इसमें लोन लेना चाहती हैं तो वो ले सकती हैं, अगर नहीं प्लीज don't make it an issue. Honorable members, I have received to oppose the motion that has been moved by the Treasury Bench MP, Mr. Rajiv Pratap Rudy, and seconded by Mr. Ram Vilas Paswan. The ruling party has come with a brute majority, sir, and I'm reminded of what Winston Churchill said during Suez Canal crisis. He said to Eden, what an excellent place to fight back. Sir, when Mr. Paswan was seconding or supporting the motion, he said during his speech that why should one keep on harping about Godhra? I would like to say, in my opinion, sir, that there are 4 incidents in the history of this country which shook the foundations of this country. First, the assassination of Mahatma Gandhi. Second, sir, the killing of genocide of Sikhs in Delhi. Third, the destruction of Babri Masjid. And the fourth, the 2002 Gujarat program. One cannot forget, जिसमें इंसानियत होगी वो इन वाक़यात को याद रखेगा, जिसमें इंसानियत जिंदा होगी वो इन लोगों को, इन खातियों को भी माफ नहीं करेगा। If that is the case, nothing will go on. Sir, if that is the case, then the day is not far when this august house will give a posthumous Bharat Ratna, if not Bharat Ratna, a Veer Chakra to Nathuram Godse. Third point, sir, I want to congratulate, I'm congratulating your Prime Minister. आप अपने भाई को समझाइए। आप बोलना चाहेंगे, मैं बैठता हूँ। I concede. You want to say on the mic, please say it. माइक पे बोलिए, मैं बैठने तैयार हूँ। आप माइक पे बोलिए, मैं बैठने तैयार हूँ। मेरे भाई, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, आप याद रखिए। Please sit down. Nothing on record unless the chair allows. Sir, I want to congratulate the Honorable Prime Minister. I want to congratulate the Honorable Prime Minister for breaking this myth of Muslim vote bank. You have destroyed it, I congratulate you. But what you have done in process, you have reiterated what I have been saying from 1950 onwards,
that there is an Hindu vote bank which you consolidated in your favor. I congratulate you for that. And your victory is a Pyrrhic victory. Why? Because you say, आप माइक पे बोलेंगे, मैं बैठता हूँ, मैं बैठता हूँ, आप माइक पे बोलिए। Please sit down. Please sit down. सर, आप माइक पे बोलिए मेरे भाई, इतना मत पुकारिए, आवाज बैठ जाएगी। Please sit down. 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 Cooperate with the chair. Please cooperate with the chair. Please. Presidential address, please, instead of politicizing your intervention on the I don't need education from you. You should educate your own brother. You have not educated and controlled your brother. Don't educate me. Don't talk about me. Tell the chair. Sir. Please sit down. Please sit down. No. There will be no record. No record. No. Please sit down. Please sit down. He has only few minutes to speak. Please sit down. Sir, inclusive development the government talks about. I would like to put a question to the honorable members. You might disagree with me, you might detest with me, but please understand that the diversity and pluralism is the ethos of this nation. How can the inclusiveness represent the August House? How many Muslim MPs are here? People, I'll come to it. Sir, I agree with you that the Kashmiri Pandit should be sent back to Srinagar, and we will ask you in 2019. And I want the Muslim Kashmiris also should go back to Kashmir, who have left their place because of militancy, like place of Kulgam. Sir, inclusiveness. Why is it that only 21 Muslim members have been elected, Muslim MPs? Why is it that I am still here? And I have opposed Mr. Modi as Prime Minister and I have won. But where is the inclusiveness? Where is the pluralism? Where is the diversity? I leave this question to the Treasury benches. Sir, in the fourth point, on paragraph number 17, you talk about making minorities equal partners. What about how equal partners? Your own minister on the very first day said Muslims are not minorities. Then am I supposed to believe that a minister is created or given a ministry for 80,000 Parsis only? That cannot be the case. Article 29 and 30, the Prime Minister-elect says that he swears by the Constitution. Article 29-30 clearly says linguistic and religious minorities. That gives me entitled right. What will have my question to the ruling parties? What about 4.5% reservation given to minorities, not to Muslims, which includes Sikhs? Our Sikhs don't want Buddhists, they don't want Christians, Muslims, 4.5. I want to ask the government, when the Prime Minister stands up to reply, if he so believes in the inclusion of the nation, what will his government propose to do for 4.5%? Sir, I am concluding in 2 minutes, sir. They disturb me, sir. Sir, now I want to, sir, the government talk about making equal partners. Akshardham judgment came on May the 16th. Didn't the Supreme Court pass strictures on the then Home Minister, who's now the Prime Minister, non-application of mind in Akshardham? Will the state government apologize? I have lost 11 years. My constituency, one Gauri was in jail, in Sabarmati jail for 7 years. Who's responsible for their lives, sir? Who will bring back the 11 years? Another point, sir. I stand here before you, sir. I stand here before you, sir, as a son of Ehsan Jafri. I stand here before you, sir, as a brother of Ishrat Jahan. I stand here before you, sir, as an uncle of Sadiq. I stand before you as a voice of those voices who have been made voiceless of the Gujarat genocide. I want justice to be done to those poor souls. I would like to know from the government, in paragraph number 39, zero tolerance towards communalism. What is happening in the nation? May 16th, Bijapur. May 16th, Ahmedabad. Mewat, now in Pune. The Maharashtra government is weak and spineless government. They should have put a ban on Avina Bharat. Unfortunately, they could not do that, sir. Sir, let me conclude by saying about my state of Telangana. I am concluding, sir. Sir, please, I beg you for half a minute, sir. I am concluding, sir. Half a minute, sir. My state of Telangana. My state of Telangana. How is it that when I am the right owner of that place, my place is given for under Polavaram project? It is unconstitutional. 10 lakh tribals will be displaced. Is the land being given
given? Is the submerged land been taken from Odisha? Is the submerged land been taken from Chhattisgarh and been given to Andhra Pradesh? I would demand a separate high court should be created in Telangana. The present chief does not want a separate high court of Telangana. I would urge upon the government. I conclude by saying I oppose this motion. Thank you, sir. Thank you. आपके मसाइल का हल आपकी अपनी क़ियादत है। आपकी क़ियादत यह है जो इख्तिदार से आंख मिलाती है। आपको अंदर बोले सबर से बोले तो आप डरा रहे काम आपको डर जाते काम आप क्या बोला है क्या बोले क्या सीबीआई क्या बोले अंदर आप क्या हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो आप पूछिए सीबीआई का इंक्वायरी बोल रहे हैं आप करते सीबीआई का इंक्वायरी आप क्यों छुपाना चाह रहे हैं आप 6 लोग मर गए वहां पे कब तक इंक्वायरी अरे अगर वही तुम्हारा कांग्रेस का मत रहेगा तो सीबीआई इंक्वायरी क्या बोल रहा आप आपकी क़ियादत बेखौफ और बेबाक है। बेशक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बेशरम और जंगली जानवर है, मैं मानता हूं उस बात को, मैं मानता हूं उस बात को सर कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, इससे अच्छा कोई नहीं है। आपकी क़ियादत जब आवाज उठाती है तो ऐवान दहल जाते हैं। हम उस बात को कभी नहीं फरामोश कर सकते कि बाबरी मस्जिद की शहादत नरसिम्हा राव के ज़ेर क़यादत में हुई। चंद्रबाबू नायडू साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वो लोग जो बाबरी मस्जिद को शहीद करे थे, क्या आप उनको दहशतगर्द मानते हैं या नहीं? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत है। गौर करें, जमात आपकी, उम्मीदवार आपके, वोट आपका। फैसला और कामयाबी भी आपकी। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। मैडम स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायर मशरिक ने बिल्कुल मरकजी हुकूमत के बारे में एक शेर कहा था, थोड़ा मैं तरमीम करके कहना चाहूँगा कि तुम्हारे वादे अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेंगे, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो मैं हुकूमत से आपके ज़रिए से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि क्या वो एक ऐसा कानून बनाएंगे या मौजूदा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून है उसको तरमीम करके इस बात को उस कानून में शामिल करेंगे कि अगर किसी हिंदुस्तानी के बैरून मुल्क में, फॉरेन मुल्क में अकाउंट्स होंगे तो वो उसका अपने इनकम टैक्स में दिखाएंगे और कंपनीज का नाम दिखाएंगे, और अगर नहीं दिखाते हैं तो उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करार देंगे, उनके प्रॉपर्टीज को, असासे-जात को जब्त किया जाएगा, कॉन्फिस्केट किया जाएगा। क्या आप इस तरह का कानून बनाएंगे? दूसरी बात मैं आपसे जरिए से पूछना चाहूंगा मैडम स्पीकर, वो ये है कि हमारे मुल्क में सरमायादार जो है हमारे सियासी निज़ाम पर कब्जा कर चुके हैं, वो हमको यरगमाल बना चुके हैं, खास तौर से 2 बड़ी कौमी जमातों को। उसका यहाँ पर जो बहस हुई, कोई इस बात का शायद ही कम लोगों ने मुतालबा किया कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पर, मैं कह रहा हूं कि उस पर बैन लगाइए। सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क की सालिमियत को इन पार्टिसिपेटरी नोट्स से है, और मॉरिशस से पैसा यहां पर आता है, कोई ये नहीं पूछता कि भैया वो किसका पैसा है, कौन इसका पैसा है, इसका नाम क्या है, और यहां पर आकर पार्क कर दिया जाता है। आज हम जानते हैं कि इराक में एक बगदादी बैठा हुआ है जिसने $80 मिलियन का पैसा कमाया है। अगर वो कंपनी बनाएगा मॉरिशस में और पैसा स्टॉक एक्सचेंज में डालेगा, हमारा स्टॉक एक्सचेंज को भी खराब तबाह कर सकते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी का भी पैसा आएगा। तो फिर क्या आप पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि आप मुल्क की सालिमियत को और मुल्क को जो खतरा है दहशतगर्दों से, उनको बचाने के लिए मुतालबा करता हूं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पर बैन लगाइए।
और जो कंपनीज और ट्रस्ट इन्वेस्ट करते हैं उनका नाम मालूम करवाइए। तीसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि HSBC से जो नाम आए हैं वो फ्रांस के फ्रांसीसी नेशनल ने हमको दिए हैं। यहां पर मरकजी हुकूमत ये कहती है मैडम कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, एक फ्रांसीसी नेशनल ने, हमारा एग्रीमेंट फ्रांस हो सकता है मगर वहां से आए अकाउंट स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने या बैंक ने हमको नहीं दिया, तो आपको नाम का इंकशाफ करने कौन रोक रहा है? लिechtenstein बैंक जर्मनी से अलग है, अलहदा इंडिपेंडेंट मुल्क है। लिechtenstein बैंक के नाम हम दे सकते, आवाम के सामने ला सकते, हुकूमत कतरा रही है। और 4 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। मैं वजीर फाइनेंस से आपके जरिए पूछना चाहूंगा कि अक्टूबर 2014 में आप क्यों गए सुप्रीम कोर्ट को कि 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको तरमीम की जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था पैराग्राफ नंबर 56 में, 71 में, 72 में कि ये तमाम चीजें गलत हैं, आप नाम दे सकते? मेरा 5वां मुतालबा हुकूमत से यह है कि अभी हमारे मुंबई से जो सांसद है बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। मैं आपके जरिए पूछना चाहूंगा मैडम कि सिंगापुर में बायोमेट्रिक्स नामी कंपनी ने सिर्फ 45 लाख का अकाउंट खोला सिंगापुर में। ICICI बैंक ने उसको बगैर कोई कोलैटरल के 6,500 करोड़ का लोन दिया और 2011 में 6,500 करोड़ रुपये यहां पर हिंदुस्तान को आया। किस कंपनी में गया? जो KG-D6 में हमारी गैस तलाश कर रही है। वहां से सिंगापुर के हाई कमीशन लेटर लिखा 2011 में कि मालूम करिए इतना बड़ा पैसा आ रहा है। क्या यह हुकूमत जो वादा करती है, ऐलान करती है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्या वो गोदावरी में KG-D6 में जिन्होंने पैसा खाया, मुल्क का पैसा है, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे आप? मैडम, अगर मैं गाड़ी के लिए लोन अप्लाई करता हूं तो ICICI बैंक मुझे लोन नहीं देता, उसके पास ना कोई ऑफिस, ना कोई कोलैटरल, ना कोई इक्विटी, 6,500 करोड़ का लोन दे दिया गया। मेरा 5वां पॉइंट हुकूमत के आपके जरिए है मैडम कि आज हमारे वजीर आजम और बहुत सी बड़ी जमात के लोग एक बहुत बड़े सरमाएदार के एयरक्राफ्ट में फिरते हैं। क्या यह बात गलत है कि SIT ने कहा है कि इस सरमाएदार की जो पावर कंपनी के जो इक्विपमेंट थे इसने गलत ओवर प्राइसिंग करके 9,000 करोड़ का टैक्स दिखाया, जबकि सिर्फ 3,000 करोड़ के टैक्स थे। 5,500 करोड़ कहां गए मैडम? क्या हमारे वजीर आजम उसके एयरक्राफ्ट में बैठना बंद कर देंगे? क्या हमारे बरबसरे जमात के लोग उसको दूर कर देंगे? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करिए। मैं आपके जरिए से पूछना हो गया वज़ीर आज़म पढ़ने के रास्तों पर। मैडम देखिए मेरी बात, निशिकांत दुबे निशिकांत दुबे साहब, मैं अदब से कह रहा हूं मैडम, उनके जरिए से मैं फकीर आदमी हूं, मैं खलंदर हूं, मैं रोड पे चलने वाला हूं, आप हवाई जहाज में उड़ने वाले हैं, भाई उड़िए, हम कहां हैं मैडम? मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। ये 2 अहम मिसालें आपके सामने दे रहा हूं, KG-D6 का और ये पावर कंपनी का। ये आपके लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, आर्टिकल 14, 23, 40, 46, 52, क्या आप इसको शामिल करेंगे? ये आप मुल्क को गलत बावर करा रहे हैं। आखिरी बात मैडम, हमारे हिमाचल प्रदेश के रुकने पार्लियामान ने कल कहा था करप्शन के बारे में। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, भैया IPL का क्या है? IPL क्या है? ये IPL क्या ये ब्लैक मनी का हिस्सा नहीं है? IPL को क्यों नहीं बर्खास्त करते? सुप्रीम कोर्ट में मुडगल रिपोर्ट आई, मरकजी हुकूमत ने क्या जवाब दिया? कुछ जवाब नहीं दिया। मैडम, मैं अपनी बात को मुकम्मल करने से पहले हुकूमत से बात बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आवाम आपसे पूछ रही है कि मेरे 15 लाख कहां है? वो गरीब जो भूखा प्यासा रहकर, वो खातून जो भूखा रहकर वोट डाली, वो जो नौजवान जो हमारे मुल्क का 60% की आबादी का हिस्सा है, वो आपको याद, में खत्म कर रहा हूं मैडम, वो आपको याद दिला रहे हैं कि मेरे 15 लाख आएंगे नहीं आएंगे। तो अब की बार 15 लाख का नारा आवाम का होगा और आपको अभी नहीं 2019 तक तो आप जिएंगे, मगर ये ऐसा जवाब मिलेगा। मुझे ये फर्क समझ में नहीं आ रहा कि यहां से वहां पर एक ही जबान बोली जा रही है सरमाएदारों की। शुक्रिया। अरे उन्हें जाएगा, उसका बाप जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी जाओ, ये सरजमीन दखन है और मुझे पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान के 25 करोड़ गयूर मुसलमानों कि वो इस जालिम का साथ नहीं देंगे, वो इस जालिम को रोकेंगे जमहूरी अंदाज में और हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। हद तो ये हो गई कि हिंदुस्तान में इनकम टैक्स निकालेंगे। इनकम टैक्स के बारे में बाबा रामदेव एक्सपर्ट हो गए। अब अजीबो गरीब, नाक बन के सांस लेने वाला इनकम टैक्स।
बर्तानिया में एक जजीरा उनके नाम के है, सुना अखबार में आया, उन्होंने बोले इनकम टैक्स अब्बा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए शायद इन्हों, योगा की डिग्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है इनके पास। इन्हों और ये मोदी बैठ के बोल रहे, और उन्हें कैसा मोदी जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्यामलाल, मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल, ये अजीब लाल, कितने लाल है इसके नहीं मालूम। मिनिस्टर एक नया ऐलान कर दिया, अभी सुना रहे थे। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी देश से टीवी पर मित्रों तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते प्राइम मिनिस्टर अचानक बोल दिए कि आज रात में 12 बजे से 500 1000 की नोट कदर खत्म, 500 1000 की नोट खत्म। अच्छा, उसकी जगह पे क्या होने वाला, अब नई 500 की नोट आएंगे और नई 2000 की नोट आएंगी। कभी 1000 से परेशानी थी तो 2000 ला लिए। क्या कर रहे प्राइम मिनिस्टर साहब आप? नहीं, ब्लैक मनी खत्म करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूं, आप तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय मलिया 9000 करोड़ खा के डकार लेके लंदन भाग गया, ललित मोदी 16000 करोड़ खा के लंदन भाग गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनको पकड़ के कौन लाएगा? आज रात से 500,000 गायब करते, कल से 2000। अरे क्या हो रहा है इस मुल्क में? खाने को खाना नहीं है, कीमती आसमान को चोरी। हिंदुस्तान के वजीर आजम के चाहने वालों ने, एक स्वामी जी ने कहा था, मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनते ही डॉलर 35 रुपये हो जाएगा। 35 रुपये जाके 70 रुपये हो गया स्वामी जी। अब क्या करेंगे डॉलर के रेट को आप? हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हो रही। और फिर आप देखते हैं मेरे भाई, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते इंडिया फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर बोलते मेरे पास एक ही किताब कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर क्या क्या बोलते हैं उनको भी ये भूल जाते होंगे, बाज़ वक़्त बोल के कितना बोलते होंगे, हर थोड़े दिन को बोलते, मन की बात रेडियो पे बोलते, सहारनपुर में जाके मुस्लिम औरतों के बारे में बात करते कि मैं मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाऊंगा। भाइयों बहनों, कैसे मुस्लिम औरतों को टेलीफोन पे तलाक दे देते। मिस्टर मोदी, हमारी फिक्र क्यों कर रहे आप? मैं सबकी फिक्र करेंगे, अपनी फिक्र नहीं करेंगे। उनको फिक्र ही नहीं, हमारे को फिक्र ही फिक्र है। उन फिक्रों से आजाद है और हम तो अफकार के शिकार होकर रह गए। मेरे भाई, महाराष्ट्र में जब तक महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट के मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सही मानों में महाराष्ट्र के नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता। रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन दे दो, तो मोदी जी बोले रहने दो। ने बोल दिया, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत दिमाग, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का जलसा हालात हाज़रा के उन्वान से मुनक़िद किया जा रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वक्तन इन जलसों के जरिए आपके दरमियान में आती है और हालात को आपके सामने रखती है। न सिर्फ हालात को रखती है बल्कि इन हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी, इस पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोशनी डालती है। और सारे
अगर आज हम हालात की बात करें तो अगर हम आलमी सूरत हाल पे अगर नजर डालते हैं या फिर आलम इस्लाम के हालात पे ऊपर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो हमको आलम इस्लाम व आलम अरब में भी हर जगह अफरा तफरी का आलम नजर आ रहा है, आपसी इख्तिलाफ नजर आ रहा है, खून खराबा नजर आ रहा है। कभी बगदाद की गलियों में मासूम मुसलमानों की जानें जा रही हैं तो कभी मिस्र की गलियों में आपसी तसादुम में हमारी जान और माल का नुकसान हो रहा है, तो कभी लिबिया में हमारे आपसी इख्तिलाफ की वजह से हमारा खून बह रहा है। तो अफगानिस्तान हो या फिर यमन हो या फिर कोई और ममालिक हो, हर जगह पर हमारी सफों में एक मनसूबाबंद अंदाज से इंतशार को पैदा कर दिया, आपसी इख्तिलाफ को पैदा कर दिया और हमारे पास देश की दौलत रहने के बावजूद हम इत्तेहाद की दौलत से महरूम रह गए। देश की दौलत रहने के बावजूद भी अगयार और दुश्मनों के मंसूबे यही है कि इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत की ताकत है। अगर ये दौलत की ताकत इत्तेहाद की ताकत से मिल जाएगी तो फिर इस दुनिया के मुस्तकबिल के मुकद्दर के मालिक कोई और नहीं बल्कि कलमा मुसलमान होगा। तो इस बात को महसूस करते हुए यहूद और नसारा ने हमको आपस में लड़ाया, कहीं पर अकायद के नाम पर लड़ाया, कहीं पर मसलक के नाम पर लड़ाया, तो कहीं पर हमको फिक्र के नाम पर लड़ाया, कहीं शिया और सुन्नी कहकर लड़ा दिया, तो कहीं पर अरब या कुछ और कहकर लड़ा दिया, कहीं पर अकायद के नाम पर लड़ा दिया। तो बहरहाल किसी न किसी तरीके से वो चाहते हैं कि हमारी सफों में इंतशार रहे, हम में इख्तिलाफ रहे और हमारे इख्तिलाफ और हमारे इंतशार के जरिए वो ये चाहते हैं कि वो हम पे मुसल्लत हो जाएं और वो जैसा चाहें वैसा हमको न चाहें। तो आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना है कि आज हिंदुस्तान में भी जो कुछ भी हालात रूनुमा हो रहे हैं ये आपके सामने आ रहे हैं। अखबारात जब हम रोज सुबह खोलते हैं या फिर जब भी टीवी को ऑन कर न्यूज चैनल को देखते हैं तो हमको कुछ और नहीं दिखाई देता बल्कि यही दिखाई देता है, यही पढ़ने में आता है, यही सुनने में आता है कि मुसलमानों पर किसी ने कुछ कहकर हमारे ऊपर एक और डर और खौफ के माहौल को पैदा करने का एक और बयान जारी किया। आप बताइए कि कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिशें नहीं होती। और फिर इस मुल्क की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हमारा सेकुलरिज्म है। इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो वो हमारा दस्तूर है। इस मुल्क की सबसे बड़ी अगर कोई किताब है जिसके जरिए आज ये मुल्क आगे बढ़ रहा है या चल रहा है या फिर आजादी से लेकर आज तक जो मुल्क जिस कानून पे चलता है, जो दस्तूर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इस इजलास को बुलाया गया है, मेरी नज़र में वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दानिशमंद थे, बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, बेहतरीन माहिर माशियात थे। और मैंने इस बात को पहले भी अवाम में दोहराया, आज भी दोहरा रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कायद था महात्मा गांधी से बढ़कर तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। मैडम, इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो अम्बेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, और अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो कोई और इस दस्तूर को बनाता और यकीनन हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क बन जाता। तो यकीनन खराज अकीदत पेश करना पड़ेगा हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम को भी। तीसरी बात यह है मैडम
कि आज हम देखते हैं कि इस मुल्क के वजारत उस्मा के ओहदे पर बड़े लोगों ने उसको मौका मिला है, मगर मैं यह मानता हूं कि 3000 साल की मसाइब और मुश्किलात और जुल्म के खात्मे और उसका एक पैगाम देने के लिए बेहद जरूरी है कि आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि एक दलित हिंदुस्तान का वजीर आजम बने। इससे एक बहुत बड़ा सही पैगाम जाएगा। पांचवी बात यह है मैडम कि आज हमारी जमहूरियत, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को फैसला किया कि हमारी जमहूरियत पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, मगर आज हम क्या देखते हैं कि अफसोस के साथ हमारे इस ऐवान में सिर्फ 6% मुस्लिम अक़लियत के नुमाइंदे जीत के आते हैं। बताइए ये कहां तक उन लोगों के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान पार्लिमानी जमहूरियत को अपनाएगा और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाएगा। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा मैडम तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये ऐवान सिर्फ अक्सर तबके का होकर रह जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अक़लियतों के लिए आर्टिकल 29 और 30 को दिया मैडम। 29 और 30 के तहत अक़लियतों की जबान, उनके कल्चर और उनके तालीमी इदारों की हिफाजत होती है। मैं यहां पर आपकी इजाजत से बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को क्या कहा था कि डू डाई हार्ड्स हु हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ फेनेटिज्म अगेंस्ट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। आई वुड लाइक टू से 2 things. One is minorities are an explosive force which if it erupts can blow up the whole fabric of the state. The history of Europe bears ample and appalling testimony of the fact. Minorities of India have agreed to place their confidence in the hands of majority. He said it is for the majority to realize the duty, not to discriminate against minority. This is the golden word said by Baba Sahib Ambedkar. Why are Muslims being denied the benefits of Article 15 and 16? Madam, the Prime Minister have taken oath. The oath of Prime Minister who took 26 May was, I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law. But I have seen the Prime Minister openly saying that he will sacrifice his life if reservation is taken away from OBCs, EBCs, Dalits. Is the Prime Minister not for the Muslims? Is the Prime Minister not for Muslims? How can the Prime Minister violate his own oath of law? How can the Prime Minister deny the benefits of Article 15 and 16? Madam, when it comes to Article 44, let me quote, Madam, please, please. 2 minutes. Let me quote what the Baba Sahib Ambedkar's article on Article 44 on 2nd of December. Ambedkar quoted, we must remember, including members of Muslim community who have spoken on this subject, one can appreciate the feelings very well. The sovereignty is always limited. No matter even if we assert it is unlimited, because sovereignty in the excess of power must reconcile itself to the sentiment of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion. This is what Ambedkar said on 2nd of December. You talk about UCC. I challenge you. Can you take out Article 371 and 371G? Can you impose uniform civil code in Kashmir? No, you cannot. People who talk about benefit of Muslim women, let me remind you, what about Article 21, right to life? What about my life, which was taken away in emergency time, which was taken away in 92 December, which was taken in the streets of Delhi in 84, which was taken away in the streets of Ahmedabad? Where did right to life go? Right to life have been abused. We talk about paying homage to Ambedkar, madam, but the communal rights in India are an example of violation of Article 21. Yes. Madam, I am concluding. Right to life is a fundamental right. Article 48 is not a fundamental right. Madam, may I also point out, lastly, madam, may I also point out what the Honorable Home Minister said. Madam, concluding, the Honorable Home Minister talked about secularism. I want to know from him, Madam Speaker, are the statements given by his own ministers that if you want to eat beef, go to Pakistan? Yes. Does he believe in yogic farming? Does he believe that Quran and Bible are not the soul of this country? Does he believe what the Haryana CM has said? Madam, what is secularism? What is secularism? Let them define. Madam, please allow me to conclude. Madam, allow me to conclude. Madam, allow me to conclude. Allow me to conclude by saying secularism is the basic structure of constitution as said by Bommai. I want to know from the Honorable Home Minister, organizer of 30th November said this constitution should be burned. This constitution should be burned. I want to know from him whether the Prime Minister also said 1200 साल की गुलामी के बाद इख्तियार मिला. मैडम, ये 1200 साल की गुलामी कहाँ है? अब सरदार पटेल ने कहा था, कब कहा था? 31 में कहा था कि 200 साल की गुलामी थी. मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनाया जा सकता.
ये बात आज जो कर रहे हैं होम मिनिस्टर का मंच और मकसद ये है कि प्रियाम्बल को तोड़ा जाए और वहां पर हिंदू राष्ट्रवादी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, आपकी इजाजत से मैं खत्म कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि आज इस मुल्क के मल्टीकल्चरलिज्म खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ताकतें हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ तो आपसे खतरा है, हमसे खतरा नहीं है। आप अपने आप को बचाइए।